ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਦੇ ਛਾਪਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੱਦਰ ਬੁਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੌਲਦ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੌਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੌਲਦ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੌਲਦ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬੌਲਦ ਵੀ ਕਾਸੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਬੌਲਦ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੌਲਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੌਲਦ ਹੈ, ਬੌਲਦ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ। ਤੁਲਸੀ ਦਇਆ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਜਬਲਾ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਨੇ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੱਚ ਚੰਦ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ 12 ਮਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਕਿਰਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਕੁੱਕੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਵਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਚਿੱਤ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 36 ਵਰਸਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 36 ਵਰਸਾਂ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 12 ਵਰਸ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ 36 ਵਰਸਾਂ ਵਿੱਚ। 12 ਵਰਸ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੀ। ਕੇਸ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੱਟਣ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੰਗੀ ਮੰਨੀ, ਤਕਲੀਫ ਮੰਨੀ। ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਪੱਟ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਤੇ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਖਾਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਪੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਲਿਆ ਇਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਤੰਗੀ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ ਦੀ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ।
उन्होंने इन्ना परहेज रखिया कि किसी का मन दुखी करांगे तो रब दुखी हो जाएगा, किसी के मन के अंदर तंगी होवे, किसी नूं तंगी देवांगे तो मन पर परमेश्वर तंग होवेगा। इस करके गुरबाणी सारियां पुरखां नूं समझाउण वास्ते सर्व सांझी गुरबाणी है। सारे जिन्ने भी दुनिया के अंदर जीव ने सारियां दे तारन वास्ते ये बड़ा बड़ा ज्ञान का भंडार गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखिया। ਇਹਦੇ ਤੇ कोई किंतु परंतु भी नहीं किया जा सकता। और जब कोई किसी गल नूं सिद्ध करन दा यतन करिए ਜਾਂ सच साबित करन दा यतन करिए तो दूसरे धर्म भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रमाण दिंदे आ, क्योंकि सच्ची बाणी है, सच्चे पुरखां दे मूँह चों निकली है, ਜਿਹੜੇ सच ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए सन, निरंकार ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए सन, उन्हां दे पुरखां दे मूँहों निकली हुई बाणी है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀ सच ਦੇ ਨਾਲ जुड़ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। सतगुरु जी बाणी में पंजवें पातशाह लिखते हैं, धर्म के कर्म कर लैने कोई बड़ी गल नहीं है। जिहड़ा दे केवल तो केवल विखावे मात्र ही होवे, उन्होंने जम जागते नूं लुट के लै जूगा। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। निर्वाण हुंदा कीर्तन करन वाले बंदे दे अंदर कोई भावना ना होवे, कोई लालच लोभ दी अंश ना होवे, केवल नरोल रब दे गुणां नूं गाया जाए। जदे अंदर वो कोई भावना बनती है तो नरोल निर्वाण नहीं है। जब वो गाउण वाले के अंदर भावना निरीक्षित नहीं है तो मोहरे वाले को निरीक्षित वो कदी नहीं करता। इस करके सतगुरु जी बाणी में लिखते, कहते भाई निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटा है। कहते छुटता जाऊगा, पर एक सौखा तरीका गुरु अर्जन देव महाराज ने होर दसिया। कहते संतो सागर पार उतरिया, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिया। जे कोई नाम नाल जुड़े हुए पुरखां दा बचन मन लवे, कमाई वाले पुरखां दे नाल जुड़ जावे, गुणवान पुरखां दे कोल बैठोगे तो गुण अंतर अपने आप ही आ जाते हैं। चंगे पुरखां दी संगत करोगे, थोड़े अंदर अपने आप ही चंगे गुण प्रवेश कर जाणगे। दुनिया दे अंदर तुसीं रोज़ किसे जिन्ना भी नज़दीकी मित्र होवे उहदे रोज़ चले जाओ, दिनों दिन प्यार घटदा चले जाता। रिश्तेदार दे रोज़ जाण लग जाओ, उहदे प्यार विच कमी आ जाती है, घाट आ जाती है। दोस्त भावें जिन्ना मर्जी नेड़े दा भी होवे, जदों रोज़ जाओगे थोड़े प्यार विच कमी आ जाती है। एक साधु की संगत है दुनिया के अंदर, जब रोज़ जाओगे थोड़ा प्यार बढ़ूगा। कबीर साहब लिखते, कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत, एक साधु को जाओगे दिन दिन प्रेम बढ़ूगा। जे गुरमुखां दे कोल जाओगे थोड़ा प्रेम बढ़ूगा। संसार दे अंदर उन्हां पुरखां दी पूजा हुई है जिन्हां पुरखां ने परमेश्वर दे नाल नाता जोड़िया। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज नाम की महिमा दर्शाते हुए गुरसिखां नूं एक बार बचन किया, पुछण लगे भाई कोई दस सकदा कबीर साहिब दे समय ते कोई राजा कौन होया? उस वेले कुछ बंदियां ने दसिया, किसी ने कोई ना लिया, किसी ने कोई ना लिया, पर कोई सच ना दस सके। अखीर दे विच साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कहण लगे, देखो भाई नाम की महिमा। कबीर एक बहुत गरीब घर दा रहण वाला सी, गरीब घर दे विच जम्मिया सी। उहनूं अज दुनिया दे अंदर बच्चा बच्चा जाणदा है, उस वेले ते राजे नूं कोई नहीं जाणदा। ये नाम की वडियाई है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद,
कहो नानक जगत में किन जपियो गुरमत। नाम केड़ा है? नाम जेड़ा भी किसी महात्मा ने दस दिता। कोई भी नाम है, अनेका नाम ने परमेश्वर दे। एक बजुर्ग है, उन्होंने कोई नाना सददा है, कोई बाबा सददा है, कोई ताया, कोई चाचा, कोई भाईया, कोई मामा, कोई फुੱਫੜ, वो सारिਆਂ ਨੂੰ जवाब दिंदा। इस तरह निरंकार दे अनेका ही नाम ने। किसी भी नाम नाल तुसी याद कर सकते हो। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच गिणती कोई नहीं। शेष नाग ने हज़ारां ही नाम मूँह तो गिणे हैं। सहस फनी सेख अंत न जाने, हर जप दे अंत न पावे गो। हर रोज़ नवा नाम परमेश्वर दा लैंदा, गिणती नहीं कर सकिया हाले तक भी। किसी भी नाम दे नाल परमेश्वर नूं चेते कीता जा सकदा है। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने बड़ा सुंदर बचन लिखिया, निर्गुण यार आणिया सो प्रभ सदा संभाल, जिन कीया तिस चीत रख, नानक निभ ही नाल। ये कल्ले सिखां नूं सुखमनी साहिब ने लिखी, ये सारिਆਂ वास्ते लिखी है। कोई भी मनुख जाति है, सारिਆਂ वास्ते है। कहते वो गुणा तो रहत बंदे नूं किया, निर्गुण यार आणिया, वो न्याणिया तैनूं मत थोड़ी है। तू परमेश्वर नूं चेते कर, जिन्हें तैनूं पैदा किया है उन्होंने याद कर। जिन कीया तिस चीत रख, नानक निभी नाल, तेरे हुण भी नाल निभूगा ते अखीर नूं बाद में शरीर छड्डण तो बाद भी नाल निभूगा। तां फिर अगे पंजवें पातशाह जी ने अष्टपदी विच लिखिया, रमैया अगे गुण चेत प्राणी। यह रमे हुए परमेश्वर के गुणां नूं चेते कर। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, तू किदां दा सी, माता दे पेट विच किदां दा सी, हुण तू किदां दा है। पहलां तेरी शक्ल किदां दी सी, हुण तेरी किदां दी है। जिन तू साज सवार सिंगारिया, जिन तैनूं सोहणा बना के संसार विच लिआंदा। किसी की एक अख ना होवे तां वो सुंदरता घट जाती है। किसी का नक बिंगा होवे सुंदरता घट जाती है। किसी के रंग विच कमी होवे उहदी भी सुंदरता घट जाती है। परमेश्वर ने सुंदर बना के इनू भेजण की कोशिश की है। तां कहंदे कवन मूल जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध। जदों छोटा सी तैनूं माता दे उस वेले दुध दिता तैनूं पीण वास्ते, पालण वास्ते तैनूं बच्चे नूं। पर जोबन भोजन सुख सूद, जदों थोड़ा जवानी होई तैनूं सुख दे दिते। सारे सुखां में तैनूं सुख बख्शिया, परिवार में सुख बख्शिया। बार तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद पैओ उपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन। जदों बुढ़ा हो गया उदों कहंदे तैनूं उपर बच्चे देते, धीआं पुत देते, वो तेरे बैठे विच मूँह च बिते रोटी दिंदे। बिरद पैओ मुख प्याओ बैठ को दैन, ये निर्गुण गुण कछू ना बुझे, बख्श लिओ तो नानक सिजे। ये निर्गुणा उहदे गुणां नूं बुझदा नहीं है। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने सारा उपदेश अष्टपदी दे विच जीव नूं समझाउण वास्ते ही वरतिया है। सो इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ कुछ दिनों तो प्रारंभ किए सन। उहदे उपरंत जो कौम की सिख धर्म की मर्यादा है तो दूसरे धर्मां दे भी अपने कानून ने, मर्यादा ने, किसी विच दखल नहीं दिता जा सकता। उन्होंने अपने अपने धर्म के जो कर्म ने वो अपने कर्म कर रहे हैं। सिख धर्म की मर्यादा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु गोबिंद सिंह साहिब का, गुरु नानक देव महाराज का स्वरूप मानते हैं, 10 पातशाहियां का स्वरूप मानते हैं। और मगरों अरदास बेनती की जाती है। अरदास है मनुख की, एकाग्र होकर अरदास हो जाए तो मनुख की अरदास पहुँच जाती है। अक्सर कोई अरदास सुनता ही होगा। बहुत सारे तो गुरमुख ये गल कह देंगे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कड़ा प्रसाद रखिया छकते नहीं है, प्रसादा रखिया छकते नहीं है। जदों अरदास सुनता वो कन ने तो वह मूँह भी तो होगा ही। अरदास जदों मक्खण शाह ने कलकत्ते तो उस बंदरगाह ते जहाज़ लगना सी, उस समुद्र दे विच तकरीबन 6 किलोमीटर अंदर समुद्र की घुमण घेरी विच मक्खण शाह का जहाज़ फस गया। उत्थे मक्खण शाह ने अपने जहाज़ दे विच खड़ा होकर बेनती की, इस वेले कोई गुरु नानक साहिब की गद्दी ते कोई होवे वो मेरी मदद करे, मैं 500 मोहर पेटा करूँगा। वो अरदास कित्थे बाबा बकाला साहिब की धरती है तो कित्थे कलकत्ते की धरती है। उतों 9वें पातशाह जी गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्थे अरदास पहुँची है तो उत्थे जाके वह जहाज़ बन्ने लाया। सो साहब विश्वास है एक
सारे होर भी धर्म जिहड़े एक विश्वास है, अरदास है परमेश्वर हरेक दे अंदर है। जदों एकागर चित मनुख होकर अरदास करदा उहदी अरदास पहुँच जाती है। अरदास द्रौपदी दी पहुँच गई, द्रौपदी नगर नहीं हुई। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बचन लिखिया होया, द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गन का पढ़त पूरे ते काज। प्रतख करा मात है हिंदुस्तान की सभा के अंदर एक जनानी नूं नगन करन लगे, नगन नहीं हुई क्योंकि उहदी अरदास प्रवान हो गई। होर किन्नियां ने जिन्हां ने अरदास की प्रवान हुई है। सो सिख धर्म के अंदर भी ये मर्यादा है, सहज पाठ जां अखंड पाठ साहिब तो बाद अरदास की जाती है। अरदास तो बाद हुक्मनामे की मर्यादा है। जिन्हां गुरमुखां नूं सोझी है, जिहड़े गुरमुख सोझीवान ने वो इस गल नूं जानते हैं भी हुक्मनामा जो है वो गुरु ने बख्शिश किया होया भी की आया जिहड़ा मैं पाठ किया सी वो कारज मेरा संपूर्ण होया जां कोई गलती हुई है, जां जिहड़ा मैं कारज शुरू करन लग्या कि ये विच मैनूं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं भी कल्ला ही हुक्मनामा पढ़ दिता तो वह आखिरी अर्थ तो हरेक बंदा टीका लै लो तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दे मिल जाणगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आखिरी अर्थ तो तुसीं पढ़ लोगे। अंतरीप भाव जिहड़ा है वो जिहड़े निर्मल कर्म वाले सच्ची सुच्ची आत्मा हुंदी है उन्हां नूं अंतरीप भाव पता लगदा है, बाकियां नूं पता नहीं लगदा। क्योंकि जिस तरह कोई चिट्ठी है किसी की लिखी हुई, वो चिट्ठी जदों दूसरा मनुख पढ़दा वो विचों गोझ गल्लां नूं नहीं समझ सकदा। जिद्दां चिट्ठी किसी ने लिखी है वो दूसरे अपने दोस्त नूं लिखदा भी जिहड़ा तूं काम किया सी मैं कर नहीं सकिया। वो चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं जान सकता किहड़ा काम सी और उन्हें किहड़ा नहीं किया। इस तरह हुक्मनामा है जिहड़ी सच्ची सुच्ची आत्मा हुंदी है। बाणी सच्ची है, गुरु सच्चा है, जिहड़ा मोरे भी सच्ची आत्मा आउंदी है वो भी सच्चा है। वो सच्चा है तो फिर उन्हां दा इक्को ही भेद कोई नहीं, अभेद है, दोने इक्को ही स्वरूप ने। जिस तरह एक महात्मा पुरखा ने प्रमाण दिता, बड़ा सुंदर प्रमाण है। एक राजे दे एक कोई कारीगर आए, वो कारीगरां ने राजे नूं कहा जी राजा असी एक चित्र बनाउण वाले हाँ, असी कंध ते फोटो बनाउने हैं और कंध ते फोटो बनावांगे, इदां दी फोटो तुसीं देखी नहीं होवेगी। वो राजा कहण लगा किन्ने पैसे लाओगे? वो कहण लगे जी पैसे तुहानूं समान लिखा दिंने आ, तुसीं समान लिया के सानूं दे दिओ, एक पासे कंध सानूं दे दिओ, उहदे ते असीं चित्र बना देवांगे। चित्र ऐसा बनावांगे, फोटो ऐसा बनावांगे दुनिया देखती रह जाऊगी। उन्होंने कई हज़ारां का समान लिखा दिता, चित्रकार फोटो बनाउण लग गए। उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत बड़ा हाल सी जिथे वो चित्रकार फोटो बनाउण लग गए। थोड़े दिनों बाद थोड़े एक बंदे होर आए, उन्होंने कहा भाई असी भी राजे नूं पुछण लगे असी भी फोटो बनाउण जाणदे हां, सानूं पता लग्या तुसीं चित्रकार लाए है फोटो वाले, असी भी फोटो बनाउण जाणदे सातों भी बना लो। राजा कहण लग्या तुसीं की बनाओगे? कहंदे असी भी इदां दी फोटो बना देवांगे जिहड़ी तुसीं कदी देखी नहीं होगी और तुसीं देख के हैरान रह जाओगे। राजा पुछण लग्या किन्ने पैसे रंग रुंग दे जां होर? कहंदे जी पैसा कोई नहीं लैना, असी फोटो बना के तुहानूं दिखा देवांगे। वो बहुत बड़ा कमरा सी, हाल सी। राजा कहण लग्या दूजे पासे कंध ते तुसीं बना दिओ। राजे ने विचाले एक पर्दा ला दिता कपड़े का और दूसरे पासे दूसरे कारीगर लग गए, एक पासे पहले कारीगर लगे हुए सन। समा बीतता चले गया, कुछ महीने बीते। जिहड़े पहले फोटो बनाउण वाले आए सी उन्होंने राजे नूं जाके कहा जी फोटो साडा तैयार है, आके देख लो। राजे नूं लैके अंदर गए, जा कंध ते चित्र बनिया देखिया, राजा बड़ा हैरान होया, कहंदा बहुत सुंदर फोटो बनी है। नाल वो दूसरे पासे जिहड़े बनाउंदे सी वो भी उत्थे ही खड़े सन। उन्होंने भी कहा जी साडी फोटो नूं भी निगाह मार जो, साडी भी तैयार है। राजे ने हुण दूजे पासे नूं जाना सी, उन्हें कहा पर्दे एक पासे कर दिओ। हुण तां दोनां दा फर्क निबड़ गया, उन्हां दी भी बन गई फोटो, उन्हां दी भी बन गई। उन्होंने पर्दे एक साइड नूं कर दिते। जदों सामने फोटो देखी कंध ते तां इधर जो चित्र बनिया सी सारे चित्र दूजे पासे फोटो कंध ते आ गया। वो राजा बड़ा हैरान होया भी तुसी पैसा भी कोई नहीं लिया और फोटो तुसी इन्हां नालों भी ज़्यादा वधिया, कोई रंग नहीं लाया, कुछ नहीं लाया,
ये तुहाडे विच की कला है? वो कहण लगे जी कला कोई नहीं है, ये 6 महीने फोटो बनाते रहे, असी 6 महीने कंध नूं चमकाउंदे रहे और साफ करते रहे और इनू शीशे वर्गी चमका दी। जिहड़ी चीज़ इहदे सामने आउंदी उहदे विच उकर जांदी आ। इसे तरह कोई महापुरख कमाई वाले पुरख उन्हां दे सामने कोई साफ हिरदे वाला चले जांदा ते उहदी फोटो उन्हां दे विच उकर जांदी। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी आ, कमाई वाले पुरुष जिहड़े नाम अभ्यास वाले पुरख है उन्होंने इन्हां दीयां गल्लां जिस तरह वो फोटो उहदे विच उकर गई तो इस तरह कमाई वाले पुरखां दे अंदर वो भी जो बचन है अंदर उकर जाते। वो जो हुक्मनामा है हुक्मनामे की सोझी जिन्हें जिहड़े गुरमुख कमाई वाले भी ने ते गुरु के कहे मुताबक जीवन दे विच उस तरह संसार विच चलते हैं, उन्हां पुरखां की महिमा तो संसार करता है, बाणी भी उन्हां दी महिमा करती है। तो सतगुरु जी ने जो हुक्मनामे बख्शिश किए ने थोड़े समय वास्ते, तो उस हुक्मनामे की विचार है सोरठ राग के अंदर। सोरठ रागणी आ रागी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते हदायत है, क्योंकि सारी बाणी गाउण विच है। गुरबाणी गावो भाई सफल सदा सुखदाई। जे केवल गाउण विच बाणी नहीं आई तो कोई एक जपजी साहिब की पवित्र बाणी गाउण विच नहीं आई, क्योंकि जपण विच है, बाकी सारी बाणी रागां विच है। जपजी साहिब किसी राग विच बाणी नहीं है, कल्ला ही इक्को ही बाणी है जिहड़ी राग विच नहीं है, बाकी सारी बाणी राग विच है। पिछे रागां की गिणती लिखी है, सोरठ गोंड मलारी धुनी पुन गावै आसा गुनगुनी, ऊंचा सुर सूहो पुन कीनी, मेघ राग सिंह पंचो चीनी। मेघ राग की स्त्री सोरठ रागणी है। गुरु अर्जन देव महाराज ने इस शब्द नूं रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहा भी इस राग के अंदर इनू गाउणा है। सो सोरठ राग सोरठ महला पंजवां, हमरी गणत ना गणियां काई। इत्थे बेनती करनी दसी है, मनुख ने किद्दां बेनती करनी है, अपने आपनी हौमे त्याग के नीमा हो के। अगर मनुख नीमा हो के गुरु मोहरे जाऊगा तो कुछ ना कुछ प्राप्ति कर लूगा। जे कोई हंकार की बिरती लैके गुरु घर में जाता या संगत में जाता, जिदा उच्चे टिब्बे मीह पै तो खाली रह जाते हैं, पानी नीवें थैं नूं आके खड़ जाता। जिहड़ा सारियां तो नीमा हो गया वो सारियां तो उच्चा गुरबाणी ने लिखिया, आपस को जो जाने नीचा सो गनिए सब ते उच्चा। ब्रह्म की अवस्था उन्होंने ही मिली है। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने ही कहा जिहड़ा सारियां तो नीमा होया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने भी लिखिया, हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। सारियां नूं नीमा हो के तू मेरे कोल आ। जिहड़ा बंदा बड़ा उच्चा हो के जाता है उन्होंने तो किसी जगह ते भी थै नहीं। हौमै रोग सब जगत व्याप्या, तिन को जन्म मरण दुख भारी। गुर प्रसादी को बिरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी। हौमै वो आ जिहड़ा दूजिਆਂ ਨੂੰ मत देवे, जिहड़ा अपनी मत नूं छोटी समझदा, गुरु की मत नूं वड्डी समझदा, वो नीमा हो गया। जिहड़ा अपनी मत नूं बिल्कुल गुरु के सामने जाके इस तरह समझदा, हमरी गणत ना गणियां काई। गिणती नहीं की जा सकती महाराज। जे साडे अपराध, जे साडे पाप, जे उन्हां दी गिणती करोगे फिर तो गिणती मुकनी नहीं। जे रब नाल हिसाब करन लग जाइए भी इहदे नाल महाराज मैं इन्नी बाणी पढ़ी है, मैं इन्नी बार गुरुद्वारे गया, मैं इन्नी बार इत्थे आ सेवा कीती है, इत्थे आ सेवा कीती है। बहुत सारे तुसीं कहंदे सुने होणगे, मैं इन्नी बार हजूर साहिब जा आया, मैं इन्नी बार फलाने थे जा आया। जे लेखा कर दे तां कदी मनुख छुट नहीं सकता। लेखे कते न छुटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शण हार बख्श लै नानक पार उतार। एक महात्मा ने एक सैल ते 12 साल बह के तपस्या की और तपस्या करदियां करदियां प्रभु प्रगट हुए। पुछण लगे भाई दसो की चाहिदा, किस कारण करके तुसी चेते करदे हो। वो कहण लग्या जी मैं 12 साल तपस्या की है। वो कहंदे तपस्या की गल ना कर, अनक तपस्या करे हंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। बहुत तपस्या करके मनुख के अंदर हंकार बिरती भी तो आ जाती है, कोई जम्मण मरण के चक्कर चों मुक्त नहीं हुंदा। कहंदे हंकार बिरती निबिरत करनी पऊगी। वो कहण लग्या जी मैं 12 साल सैल ते बैठा रहा। कहंदे इहदी गल ना कर, जे इहदे नाल हिसाब करन लग गया फिर तां तूं कदी निकल सकदा ही नहीं। फिर जदों ना मन्निया तो निरंकार परमेश्वर कहण लगे
जे सैल दे उत्ते तू 12 साल बैठा रहा, ये सैल नूं 12 साल अपने सिर ते चक के खड़ा हो, ਇਹਦਾ लेखा कौन दूगा ਜਿਹਦੇ तू 12 साल बैठा रहा? ਇਹਦਾ की कसूर है ਜਿਹਦੇ ते 12 साल बैठा रहा? ਇਹਨੂੰ 12 साल चक के सिर ते खड़ा हो। ਤਾਂ गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, लेखे कते ना छुट्टी, खिन खिन भूलन हार, बख्शणहार बख्श लै नानक पार पार। प्रभु ना लेखा नहीं किया जा सकता। मैं महाराज इन्नी बाणी पढ़ी है, मैं ये चंगे कर्म किए है, मैं सड़क बनाती है, नहीं ये तो लेखा नहीं कभी छुट सकता। कहते इस तरह बेनती करो भाई, हमरी गणत ना गणियाँ काई, महाराज साड़ी गिणती ना करियो जी। पाप कर्मां की गिणती, गणका की गिणती नहीं की महाराज ने। गणका पापण हो के पापां दा गलहार परोता। गणका ने पाप करके सारी जिंदगी बेसबासी, पाप करदियां करदियां महात्मा पुरखां की संगत हो गई। गणका भी सचखंड नूं चले गई। महापुरख चानचक गणका बाड़े आए खलोता। कुदरती सहज सवाई महापुरख गणका के बाड़े चले गए। मीह पैंदा सी, दुरमत देख दयाल हुए, हथों उसने दितो स्तोता। महात्मा ने तरस करके गणका नूं तोता दे के उन्होंने भाई सिमरन की विधि दस दी। वो गणका फिर भावें पाप कर्म करती सी, गई बैकुंठ बवान चढ़ नरकां विच ना खाधुस गोता। महापुरखां दे बचन मन के गणका भी पापण हो के वो सचखंड नूं चली गई। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे नस्तारा। कहत नानक चेत चिंता मन, तैं पे उतरस पारा। कहंदे भाई तू भी परमेश्वर नूं चेते कर ला। अजामल वर्गे पापी भी पाप सागर नूं तर गए। जपहीण तपहीण कुलहीण कर्महीण, नामे के स्वामी तेऊ तरे। कहंदे भाई जप तो हीणे भी, तप तो हीणे भी, कुल भी जिन्हां दी उच्ची नहीं सी, जिन्हां दे कर्म भी कोई बड़े नहीं सी, नामदेव जी कहंदे निरंकार ने सारे ही तार दिते है। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे भाई जदों बेनती करनी होवे, जदों किते गुरु घर जाके बेनती करिए, इदां नीवें हो के बेनती करिए, महाराज साडे पापां दी गिणती ना करियो जी। साडी गिणती कीती नहीं जा सकती कि जद दे जम्मे आ पता नहीं पिछले जन्मां दे किन्ने क अपराध ने साडे। ये तो अपराध किते साधु की संगत होवे तां मिट जाणगे। कोट अपराध साध संग मिटे, करोड़ां अपराध साधु की संगत नाल तां मिट जांदे आ। जे बंदा अपने जोर ला के कहे मैं जोर ला के कदी नहीं मिट सकते। गुरबाणी ते लिखिया, गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखिया, करोड़ां अपराध साधु की संगत। ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਝੌਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ पैसों नाल नहीं नापी जा सकती, जां उहनूं कोई दुनिया उहदे मगर देख के ये नहीं नापिया जा सकता। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया, बसदा टुटी चौंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो ध्यान पर मिन्ना, मित्र ना इठ धन रूपहीन के साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना, तिसकी धूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्न। ऐसे पुरख की धूड़ मिल जाए रब खुश हो जाता है। ऐसे पुरखों के दर्शन गुरु अर्जन देव महाराज कहते, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अबर सियानप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग। ऐसे पुरख की सेवा में चले जा, आवण जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। ऐसे जन के पैरों की पूजा करो, ऐसे पुरख के कोल जाके बेनती करो, वो फिर थानू छड़ा दूगा तो वखरी गल है। साधु की संगत तो बिना मनुख कभी भव सागर तर नहीं सकता। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखिया, संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। महापुरख की संगत नाल ये लाभ है। रामचंद्र महाराज योग वशिष्ठ दे विच संगत नूं उपदेश करके एक बचन लिखदे। राम जी के ग्रंथ ने, चाहे भगवान कृष्ण की गीता है, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे किसी महापुरख का ग्रंथ है, उन्होंने जिहड़े बचन लिखे आ, तकरीबन योग वशिष्ठ में एक बचन लिखिया है। जिस तरह सूरज के विच बह जाइए, राम जी महाराज लिखते हैं, सूरज की धुप विच बह जाइए, कई मनुख की इच्छा तो बिना मनुख नूं कई तत्त मिल जाते हैं। जिद्दां सूरज के विच डी विटामिन है, जिन्हां नूं सूरज की धुप नहीं मिलती, मझ नूं तुसीं अंदर बन्नण लग जाओ
ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਕਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਨਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਾਨ ਚੱਕ ਹੀ ਗਨਕ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੰਡ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੁੱਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਧੂ ਤੋਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਾਂ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਤਾਰੋ। ਭਇਓ ਅਟਲ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਹਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਵਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਸਰਾਇਆ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਕਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲੋ ਬਰਨੋ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਸਤਾਰਾ, ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾਮਨ ਤੈ ਪੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਥੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਅਖੀਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਬੰਨ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ, ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਬਚਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਮਿਹਰਬਾਨ।
परमेश्वर तो मेहरबान है पर मनुख भुल जाता है। तुसी उहदी मिहनत तरला करो फिर भी मेहरबान है, उन्हें मेहर कर देनी है। कोई बंदा बेनती करे मेहर कर दिंदा है। परमेश्वर साचा साहिब सदा ही मेहरबान है। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण। बंद हुंदा जिद्दां रुड़े जाते बंदे नूं कोई बन ला देवे। दरिया में रुड़दा है, कोई नहर में रुड़दा, मोरे उन्होंने एक लाया हुंदा फट्टा जिहदे विच लाशां रुक जांदियां। इदां ही रुड़े जाते जीवां वास्ते निरंकार जी ने कोई बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, एक बन है जिहड़ा इहदे नाल जुड़ जाता है, भवसागर में रुड़ने तो बच जाता है। जां होर धार्मिक ग्रंथ ने, कोई बाणी पढ़दा, कोई नाम जपदा, एक बन ने। रुड़िया जाता बंदा तेज समुंदर में रुड़िया, नहर में रुड़िया, पानी में रुड़िया जां अग में है, उन्होंने रोक देना। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण। जीओ पाए पिंड जिन साजिया। जीव आत्मा शरीर में पा के इस शरीर को साज के संसार में भेज दिता। जीव आत्मा शरीर में हर जीओ गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया। बजाया बाजा पाउण 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी इकना 10वां द्वार दिखाया। 10 दरवाजे ने शरीर दे, एक 10वां गुप्त है। ये शरीर के अंदर आत्मा परमेश्वर ने जीओ पाए पिंड जिन साजिया। शरीर कहते पिंडा शरीर में कहते हैं। आम तौर पर साढ़े पिंडा की कहावत है, जे बंदा कोई पैर हाथ धो लेवे उन्होंने कहते पिंडा भी नहा लेना सी। ये शरीर में पिंड कहते हैं। जीव आत्मा पा के शरीर में साज के तुरन फिरन जोगा, कार विहार करन जोगा बना दिता। ये संसार में कमाई नाम की भी कर सकता है, विषय विकारां में भी यदि मर्जी है, तो यदि सोच है। जीओ पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनण खाण। जे शरीर साजिया तो वो खाण पीण की भी नाल भेजिया संसार में। जे खाण पीने ना हुंदा तो सारे जीव चढ़ाई कर जाने सी। जिथे जिथे भी कोई जीव पैदा किया उत्थे उत्थे उसका रिजक पहुँचाया। सतगुरु जी उडे उडावे सैकोसा तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया। जिथे जिथे जीव सी उत्थे उत्थे उन्हों रिजक पहुँचाया। सिर से रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया। पहाड़ों में जीव ने उत्थे उन्हों रिजक है। जिथे जिथे कोई पैदा किया उत्थे उसका रिजक है। राजस्थान में चले जाओ, पत्थरों के पहाड़ ने, उत्थे भी दुनिया बैठी, उत्थे उन्हों रिजक है। हेमकुंड साहब की धरती वाल चले जाओ, पहाड़ों से दुनिया बैठी है। जिथे खाण नूं कुछ नहीं है पर उत्थे भी रिजक है उन्होंने वास्ते। जिथे जिथे जीव पैदा किए उन्हों रिजक उत्थे पहुँचाया। जीओ पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनण खाण। उन्होंने दे खाण नूं पहनण नूं सारी वस्तु मोहरे रखी है। पहले परा लबद बनी पाछे बना शरीर। शरीर बाद में दुनिया चाहता, माता के पहला थणा में दुध आ जाता है बच्चे वास्ते। वो बच्चे पैदा करके उन्होंने पालण वास्ते, उसकी रखिया वास्ते दुध पैदा कर दिता। अपने दास की आप पैज राखी नानक सत करवान। अपने सेवकों की पैज रखता, अपने सेवकों की इज्जत रखता। जेड़े उहदे आ जिद्दां कोई बड़ा बंदा है उहदे नाल किसी का प्रेम है भी उहदी पहुँच के हरेक थां उहदी मदद करदा। इस तरह जेड़ा कोई प्रभु नाल प्रेम करदा, जेड़े उहदे दास है, जेड़े उहदे हुक्म विच खड़े है, उन्हां दी पैज रखदा, इज्जत रखदा। किते उन्हां दी धब्बा ना लग जाए, उन्हां दी बेसत्कारी ना हो जाए। ये परमेश्वर का बिरध है, उन्हां दी पैज रखना। अपने दास की आप पैज राखी नानक सत करवान। ये परिवार ज्ञान चंद जी, उन्हां दा सारा ही परिवार, संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले दुआबे की एक महान हस्ती हुई है। शायद थोड़े विच बहुते नाम भी जानते हो। बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड के अंदर। नहीं तो यह सारी धरती ते पाकिस्तान बनता सी। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की वंड जिहड़ी तुसी हुण देख रहे हो, ये संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवालियां की बदौलत, बाबा बीरमदास उन्हां की बदौलत है तुसी बैठे हो। एक निरोल परमेश्वर के निरंकार के नाम जपण वाली आत्मा, जिहड़ा किसी धर्म नूं माड़ा नहीं सी, सारियां धर्मां दे उत्थे उन्हां दे स्थान ते आया करते सन। कई बार जैन धर्म के भी लोग आया करते सन, दूजिया धर्मां के भी आया करते सन। उन्हां सारियां दा सत्कार करते सी। जिहड़े प्रभु का नाम लैंदे सी सारियां दा ही सत्कार करते सी। सारियां धर्मां दे उत्थे पैरोकार महापुरुष आउंदे सी, वो सारियां दा सत्कार करते सी।
उस महान हस्ती के पवित्र स्थान के सेवादार ने। उत्थों ही संगत आई है, रागी सिंह भी उत्थों ही आए है। एक शब्द रागी सिंह पढ़नगे, बहुता समा नहीं लाउणा, क्योंकि रागी सिंह पैसों वाले नहीं, मत भुलेखा रखियो कि रागी सिंह पैसों वाले ही हुंदे आ, नहीं, ये तो केवल प्रेम वाले रागी आ। जिथे जिथे तुसी बैठे हो एक शब्द ही पढ़नगे, उहदे तो बाद कड़ाह प्रसाद की देग वरता देनी आ। ये एक बड़ी खुशी की गल है। महापुरुष कहते होंदे सी, जां तां कारोबार शुरू करने वास्ते जिसले काम शुरू किया मीह पै जाए, जां समाप्ति ते मीह पै जाए, ये रब की खुशी की निशानी है। ये शुरुआत ते मीह पिया, ये भी एक रब की खुशी की निशानी है। सो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ परिवार वालों, जिन्हें तुसी आए हो। एक शब्द बैठ के तुसी जरूर सरवण कर लियो, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ परिवार ਦੀ जिदा ਉਹਨਾਂ ਦਾ अपना प्रबंध होवेगा उस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ